أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أسألك علما نافعا. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سٹر آج ہم نظم دیکھنے والے ہیں جس کا عنوان ہے بجلی کے کرشمے. بجلی یعنی کیا؟ جو لائٹ ہوتی ہے نا، کرنٹ، اس کے جو کرشمے ہیں. دیکھیے اب ہم یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ بجلی کو چھوڑ کر کوئی لائف ہو سکتی ہے نا، مگر ایسے ہوتا تھا جب بجلی کا ایجاد نہیں ہوا تھا، بجلی کا جو انوینشن نہیں ہوا تھا، اس کے پہلے کی لائف تو ایسی ہی تھی ہے نا. نہ مکسر، نہ فریج، نہ بجلی، نہ بلب ہے نا، نہ اے سی، نہ فین، یہ سب اس طریقے سے لوگ جیتے تھے ہے نا. سادہ اور سمپل زندگی تھی. کب؟ یہ بجلی کی ایجاد ہونے سے پہلے. تو یہ سب آج دکھایا جا رہا ہے اس نظم کے ذریعے کہ بجلی کی ایجاد کتنی ہے. دیکھیں آج کے جو یہ زمانہ ہے نا، اے آئی کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں بجلی کے بغیر لائف کا امیجن کرنا بھی بہت مشکل ہے نا. تو یہ بجلی کا یہ جو ہے اللہ کی دی ہوئی ہمیں نعمت ہی ہے نا. جو ایجاد ہے، انسانوں نے جو ایجاد کی ہے، انوینشن کیا ہے بجلی کا، وہ ہمارے لیے بہت بہترین تحفہ ہے نا. مگر اس کی جس طریقے سے فائدے ہوتے ہیں اس طریقے سے نقصان بھی ہے نا. بجلی کے ایجاد سے کہیں ہمارے پاس بہت سارے آلے استعمال ہوتے ہیں، جیسے آٹا گننے کی مشین، فریج، کولر، مکسر. یہ جہاں ہمارا کام فاسٹ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس کا اگر نگیٹو پوائنٹ دیکھتے ہیں تو یہ ہماری زندگی میں لیزینس لاتا ہے نا. آلسی ہو جاتے ہیں لوگ اس سے. تو چلے دیکھتے ہیں پھر آج بجلی کے کرشمے ہے نا. یہاں پر بجلی کے جو ہے پورے پازیٹیو پوائنٹ دکھائے گئے ہیں نا، کہ بجلی کے پہلے کا زمانہ کیسا تھا اور آج ہم جو بجلی آنے کے بعد ہماری لائف میں کتنے چینجز آ گئے ہیں ہے نا. تو بجلی کس طریقے سے ہمارے لیے کرشمہ ثابت ہوا ہے وہ یہاں پر. تو دیکھیے بجلی کے کرشمے آج ہم یہ پوائنٹ دیکھنے جا رہے ہیں نظم. تو دیکھیے بجلی کے کرشموں نے آرام دیے کیا کیا ہے نا. جو بجلی کی ایجاد ہوئی ہے، ایجاد ہو گئی ہے بجلی، تو اس کے کرشموں نے ہمیں کیا کیا آرام دیے ہیں نا، ایک لائف کو کیا کیا آرام دیے ہیں. بلب کہیں روشن چلتا ہے، کہیں پنکھا ہے نا. دیکھیے پہلے زمانے میں نا چراغوں کا استعمال کیا جاتا تھا، لیمپ کا استعمال کیا جاتا تھا. آج اگر گھنٹہ بھر کے لیے بھی ہمارے اگر لائٹ چلی جاتی ہے، بجلی کا کنیکشن یہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو ہماری زندگی میں دیکھو کتنا بھوچال آ جاتا ہے نا، کہ لائٹ نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے. لائٹ کے بنا ہم کوئی کام کر ہی نہیں سکتے آج کل. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہیں بلب روشن ہے بجلی کی وجہ سے، تو کہیں پنکھا چل رہا ہے نا. تو کتنا آرام دیا ہے بجلی نے ہمیں. تو دیکھیے اس شہر کی پتلی کا ایجاد کیا. ایجاد اعجاز یہ کیا کم ہے نا، کہ چھوتے ہی بٹن گویا گھر نور کا عالم ہے. دیکھیے اس مصرے کا اب ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں کیا کیا گیا ہے، کہ کیا بتایا گیا ہے. اس شہر یعنی ایک چھوٹی سی یہ جو پتلی ہے، ایجاد ہے، تو اس کا اعجاز یہ کیا کم ہے. ہاں، اعجاز اس کا جو یہ کرم ہے ہم پر، یہ کیا کم ہے کہ اگر ہم صرف بٹن کو ٹچ کرتے ہیں اور ہمارا گھر پر نور ہو جاتا ہے، یعنی روشن ہو جاتا ہے. عالم ہے نا، یہاں عالم کہا ہے نا. تو کہ ہمارا جس طریقے سے ہم ایک بٹن کو چھوتے ہیں اور ہمارے گھر کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے ایک بٹن سے دیکھو ہے نا، الیکٹریسٹی کے جو آفس ہوتا ہے وہاں پر ایک بٹن سے پورا شہر عالم کیا ہو جاتا ہے، روشن ہوتا ہے. یہ کیا اعجاز کم ہے کیا؟ یعنی اتنا بڑے اس کا کام ہوتا ہے کہ ہم کو اتنی سہولت دی ہے، مطلب اتنا ہم پر کرم کیا ہے اس بجلی نے، کہ ایک بٹن چھوتے ہی ہمارا پورا عالم کیا ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ بجلی کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے. پھر دیکھیں اور نوکر کے بلانے کو گھنٹی بھی بجاتی ہے نا. جیسے آپ دیکھتے ہیں دواخانوں میں، آفیسز میں نوکر کو بلانا تو کسی ایک آدمی کا کام نہیں ہے. اگر ہم صرف بیل بجاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ نوکر یا پھر وہاں کا کمپاؤنڈر جو بھی ہے وہ چلے آتے ہیں. انہیں یہ بتا دی جاتی ہے، یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ایک بیل کا مطلب تم آنا، یا پھر دو بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے.
तो इस तरीके से ये बेल बजना भी क्या है, बिजली का ही करिश्मा है। और देखिए, बेआग की शिरकत के खाना भी पकाती है ना, इंडक्शन जो चूल्हे हैं आजकल, उसमें आग दिखाई देती है क्या? आग है न धुआं है ना, कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी क्या हो रहा है, खाना पक जाता है। तो वही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आग भी नहीं है और फिर भी हमारे खाने पक रहे हैं। और देखिए आगे, जाड़े में अगर मिलने आ जाए कोई मेहमान, कमरे में जला देगी ये आपका आतिशदान, है ना। देखो सर्दियों के मौसम में अगर हमारे घर पर कोई मेहमान आते हैं, अगर जिसके यहाँ पे है ना हीटर, तो वो क्या कर देते हैं, फौरन हीटर चलाकर क्या कर देते हैं, ठंडी को भगा देते हैं, है ना। जैसे गर्मी में होता है एसी का यूज करते हैं, तो उसी तरीके से क्या होता है, ठंडी के दिन में क्या किया जाता है, हीटर का यूज करते हैं और ठंडी को दूर भगाते हैं। और गर्मी को दूर भगाने के लिए क्या किया जाता है, गर्मी को दूर भगाने के लिए एसी फैन कूलर ये सब चला देते हैं। पहले जमाने में देखे था क्या, लाइट की इजाद ही नहीं, तो ये बाकी चीजों का तो नाम ही नहीं है देखिए, है ना। तो फिर पहले जमाने में क्या हुआ करते थे, पेड़ों के नीचे बैठना, है ना, घरों पर पेड़ों के पत्ते डाला करते थे, जिससे क्या हो जाते थे, घर ठंडे रहा करते थे। और देखो पहले जमाने की इजाद भी ऐसी थी, मतलब घरों की बनावट भी ऐसी थी कि गर्मियों में क्या वो घर ठंडे रहते थे और ठंडी में गर्म रहते थे। तो ये टेक्निक थी पहले की। मगर ये बिजली के इजाज से क्या हो गया कि जो हमारे मकान है वो कंक्रीट के बन गए, है ना। फिर एसी है, हीटर है, फ्रिज है, कूलर है, ये सब यूज करने लगे। इतनी देखो ये सब जो चेंजेस है ये किस पे डिपेंड है, अगर हम सोचते हैं कि इतनी तरक्की हुई है, ये जो मशीन है हमारे, मिक्सर है, कूलर है ना, जैसे कंप्यूटर है ऑफिसेस में देखे, तो ये सब के लिए क्या जरूरी है, बिजली, है ना, लाइट जरूरी है इस सब के लिए। ये जब सब मशीनें काम करती है, तो इन्हें सबको काम करने के लिए क्या एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो वो है बिजली। अगर बिजली चली जाए तो सब काम हमारे आजकल ठप रह जाते हैं, है ना। तो वही बताया जा रहा है कि बिजली के क्या क्या करिश्मे हैं। देखिए आटे की ये बेचारी चक्की भी चला लेती है, देखिए और तो और क्या है ना, पहले कैसे वो इस पे आटे पीसा करते थे, देखो गेहूं जवार बाजरा ये सब है ना, चक्की पे पीसा करते थे। और देखो वो हेल्थ के हिसाब से ना बहुत परफेक्ट था, तो उससे ना औरतें देखिए सेहतमंद रहती थी। मगर आजकल क्या है, टाइम, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, और किसी को आजकल का देखिए खाना भी है ना, इतना ये हो गया है कि इंसान को खाना खाने के बाद भी जो चाहिए उतनी एनर्जी नहीं मिलती है ना, सब केमिकल बेस्ड खाना, खाने का जो टेस्ट बदल गया है, जायका बदल गया है, और जितनी उससे हमें ताकत मिलनी थी उतनी ताकत नहीं मिलती। तो उतनी ताकत हमें खाने से नहीं मिल रही है, तो इतनी किसी के पास ताकत भी नहीं कि हेवी हेवी काम करे। देखिए पहले पहले के ना तलवारें भी देखे, 30 30 40 40 किलो की ना तलवार होती थी। आजकल के आदमी को आप वो तलवार उठाने दो, वो उठाएगा भी नहीं सही से। तो पहले वैसे तलवारों से लड़ाई होती थी, इतनी हेवी हेवी तलवारें भी होती थी। तो उन लोगों का खाना भी इतना अच्छा होता था, है ना, बगैर केमिकल का ये वो। तो फिर ये जमाना जैसे कि बिजली का जमाना आ गया, तो फिर सब लोग काम में भी आलसी हो गए, है ना। टाइम ही टाइम है, और टाइम क्या करते हैं, फिर फोन इंटरनेट ऐसे टाइम बर्बाद करते हैं। फिर देखिए आटे की है, आटे की जो चक्की होती है ये भी चलाने का काम कौन करती है, बिजली करती है। कुवत की अगर पूछो, हर वजन उठाती है, ये तो पता है आपको, क्रेन वगैरह, बड़े बड़े पेड़ बोलो, खंभे बोलो, या फिर बड़े बड़े पत्थर, ये जो कुछ भी उठाने का काम या गढ़ा करने का काम जो होता है, ये भी किसके जरिए, इन शॉर्ट में बिजली के ही जरिए होते हैं ना। मशीन, जो भी मशीन है उसने चलना है तो बिजली के थ्रू ही चलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लिफ्ट में बिठाया और उड़ गई छत छत पर, है ना। जैसे कि लिफ्ट अभी जो बिल्डिंग्स होते हैं, है ना, तो इतने माले चढ़कर कोई जाता है क्या, देखिए, है ना, स्टेप से नहीं जाता, वो क्या करते, लिफ्ट का यूज करते। तो लिफ्ट भी तो किससे चल रही है, वो भी तो बिजली से ही चल रही है ना। तो जो छत छत पर ले जाती है ना, पहले माले पे, दूसरे माले के 15वें माले पे, 17वें माले पे, इतना कौन, अगर देखे शहरों में तो जगह की कितनी किल्लत होती है ना, जगह की बहुत किल्लत होती है, तो वहां पे माले, है ना, बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती है। तो चढ़कर जाना पॉसिबल के कितना टाइम वेस्ट होगा, और इतने ऊपर कोई रहेगा भी नहीं। तो इसलिए फिर क्या इजाद हो गया, लिफ्ट इजाद हो गई। और वो लिफ्ट भी किससे अटैच है, बिजली से, अगर बिजली होगी तो ही वो काम करेगी। अभी बैटरीज वगैरह वो है, वो बात अलग है, मगर इन शॉर्ट में क्या है, वो बिजली से ही जुड़ी है, लिफ्ट वगैरह भी। कुर्बान है परियां भी परवाज की सुरअत पर, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि कुर्बान है परियां भी, जो उड़ने का काम पहले किससे हो जाता था, उड़ना,
किससे मेल खाता था कि परियों की तरह, है ना। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर कि कुर्बान है परियां भी परवाज की सुरअत पर। सुरत यानी तेजी पर। जिस तरीके से जो लिफ्ट चली जाती है फास्ट, ट्रेन फास्ट है, तो आजकल परियां भी क्या हो रही है, या ये है ना मुबालिगा है। मुबालिगा यानी बढ़ चढ़ कर तारीफ करना। जो यहाँ पर बिजली की तारीफ की जा रही है वो बढ़ चढ़ कर की जा रही है ना, कि परियां भी उस पर कुर्बान है। और सूरत यानी क्या कि तेजी पर। बिजली की तेजी पर क्या है, परियां भी कुर्बान हो गई है। दम भर। अब देखिए ये लाइन, अभी ये वाला मिसरा देखेंगे कि दम भर। हम्म, दम भर में मुमालिक की तफरीक मिटाती है, मगरिब से खबर लाकर मशरिक को सुनाती है ना। जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल इंटरनेट ये जमाना है, तो एक पल भर में क्या हो जाती है, इस मुल्क की खबर उस मुल्क तक चली जाती है। घरों की बात छोड़े, शहरों की बात छोड़े, यहाँ पर मुल्क की बात बताई जा रही है ना। तो एक लम्हे भर का ही टाइम होता है कि इस मुल्क की खबर क्या हो जाती है, उस मुल्क में चली जाती है। तो ये भी क्या है, बिजली की वजह से ही इजाद हुआ है। इस तरीके से हम देखने जा रहे हैं और बिजली से क्या क्या फायदे हुए हैं, क्या क्या तरक्की हुई है बिजली की वजह से, और बिजली की वजह से हमारी जिंदगी कितनी चेंज हो गई है, और कितने फायदे हमारे बिजली की वजह से काम कितने फास्ट होते हैं। अब देखते हैं। देखिए, दूरी की मुसीबत से आजाद किया उसने, है ना, तारों पर खबर लाना इजाद किया इसने। देखिए पहले जमाने में देखिए कासिद होते थे, घोड़ों पर वो लेटर लेकर जाया करते थे, है ना। तो दो दो तीन तीन दिन का उन्हें ना टाइम लगता था एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए। तो खबर भी जाने के लिए उतना ही टाइम लगता था। मगर आजकल क्या हो गया है कि ये जो दूरी है, तो लाइट की वजह से ये पूरी दूरी मिट गई है ना। आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इस मुल्क में है या मुल्क से बाहर, क्यों तो फौरन वीडियो कॉल हो जाता है, बात हो जाती है ना। इतनी बिजली की वजह से यहाँ पर इजाद तरक्की हो गई है बिजली की वजह से। तो लम्हे भर में तारों पर खबर लाती है ना। जो तार होते हैं ईमेल टाइप, तो ये क्या होती है, ये फास्ट खबर हम तक पहुंचाते हैं। कल तक इसे तारों की इमदाद की हाजत थी, तोड़ा ये ताल्लुक भी अब बन गई ला सिल्की। अब ला सिल्की यानी क्या, देखे, ला सिल्की यानी बेतार की बरकी। जैसे मोबाइल है ना। पहले तो क्या होता था, देखिए फोन को भी है ना तारों से जोड़ा हुआ था, मतलब वायर तार ये सब लगते थे। मगर अब तो वो भी गुंजाइश नहीं बाकी रही। अब तो क्या हो गया, बरकीरो, है ना, जिसे हम जैसे कनेक्शन कहते हैं ना, वेब नेट कहते हैं, मतलब जो होते हैं ना कनेक्शन, वो, कि इसको तो आप क्या है, देखिए मोबाइल को ऐसे नहीं। अब पहले जमाने में क्या था, मतलब इससे थोड़े दिन पहले तो लैंडलाइन होते थे। तो उन्हें देखिए हम कहीं भी लेकर जा सकते थे क्या, नहीं जा सकते, क्यों तो वो उसे क्या उसको क्या था, वायर तार ये जुड़े हुए थे। मगर अब मोबाइल है, मोबाइल को तो हम कभी भी किधर भी किसी भी वक्त ले जा सकते हैं, है ना। तो ये जो तारों से कनेक्शन था वो भी अभी टूट गया है, ताल्लुक इनका तारों से भी टूट गया है। और ये बरकी रो का हो गया है। बरकी रो यानी कि नेटवर्क होता है, इंटरनेट होता है। तो इन्हें अभी तारों की भी जरूरत नहीं है, ये हवा में ही लहरें होती है, बरकी रो होती है, जिसकी वजह से इनका ताल्लुक अब तारों से भी टूट गया है। आगे देखते हैं। तो इसका देखिए, ला सिल्की यानी क्या, कि बेतार की बरकी रो। हम्म? फिर हाँ जिसकी ये हिम्मत हो, हाँ, हाँ जिसकी ये हिम्मत हो, बस फिर उसे क्या डर हो, हाइल नहीं अब कुछ भी, खुशकी हो समंदर हो। देखिए, हाँ जिसकी ये हिम्मत हो, बस उसकी फिर उसे क्या डर हो, हाइल नहीं अब कुछ भी, खुशकी हो या समंदर हो। देखिए यहाँ पर अब सिर्फ काम किसका है, हिम्मत का है, इरादे का है। फिर तुम खुशकी में हो या समंदर में हो या किस भी जगह हो, आपको काम करने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो फिर देखिए, हिम्मत अगर होगी तो आप कोई भी काम कर सकते हो और कहीं भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आप खुशकी पर हो, खुशकी यानी क्या, जमीन पर। तो आप जमीन पर हो या पानी पर हो, इसका कोई, ये बात कोई मैटर नहीं करती। अगर आपको कोई काम करना है, घर बांधना है, तो आप जमीन पर भी बांध सकते हो और समंदर में भी बांध सकते हैं, है ना। इतनी इतनी तरक्की इस बिजली की वजह से हो गई है। आप देखते हैं ना बड़े बड़े दरियाओं में, मतलब तालाबों पर, है ना, महल वगैरह बनाए जाते हैं। तो इतनी तरक्की की है हमारी टेक्नोलॉजी ने। तो ये सब पॉसिबल किससे हो गया, तो बिजली की वजह से। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप काम कर, मतलब आप कहाँ काम कर रहे हो, खुशकी में कर रहे हो, है ना, जमीन पर कर रहे हो या आसमान पर या फिर समंदर में। ये बात अब कोई मैटर नहीं करती, इतनी तरक्की की है इस बिजली के वजह से हमने। अब देखते हैं, देखिए, जिन जिन है ना परी है,
ये जिन है न परी है ये, जादू है न टोना है, बेदार दिमागों की जद्दत का खिलौना है। तो देखिए ये जो है सब, ये इतने जो कारनामे किए हैं बिजली ने, ये ना जिन है ना कोई परी है, और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई जादू है। हाँ, ये बेदार दिमाग है ना, जो इन्वेंशन करते हैं, है ना, ये हमारे दिमाग से ही इन्वेंट हुआ है ना बिजली। ये जो बिजली की इजाद की है हम इंसानों ने ही की है। आप ऐसा ना कहे कि ये कोई जिन है या परी है और ना जादू है, तो ये हमारी ही इजाद है जिसने क्या किया कि हमें इतनी तरक्की पर पहुंचाया और इतनी हमारी मदद कर रही है। तो बोलते हैं ना, जरूरत इजाद की माँ है, ऐसे कहते हैं, एक मुहावरा है ये, जरूरत। यानी देखिए इंसान को जरूरत पेश आती है तब वो उसका हल निकालता है ना, कोई दिक्कत होती है तभी हम उसका हल निकालते हैं। जैसा कि पहले देखिए घंटों हमें कुछ अगर मिर्च मसाले वगैरह बनाने होते थे तो उसको घंटों कूटना पड़ता था, है ना, मसालों को। तो अब क्या है, तो फिर सोचा, है ना, किसी दिमाग ने, कोई भी इंसान ही है वो जिसने सोचा, तो उसने सोचा कि कोई ऐसा आला क्यों ना बनाऊं मैं कि घंटों का काम मिनटों में हो जाए। फिर उसने सोचा होगा कि ऐसे ऐसे काला बनाए, ऐसे डिब्बा बनाए, उसमें फिर आरी लगाए, फिर ये मिक्सर का काम करेगा, है ना। तो ये ऐसा, तो यही कहा जाता है कि जरूरत, आपकी जरूरत होनी चाहिए और आपकी सोच होना चाहिए। तो अगर जरूरत होगी तभी आप उसके लिए कुछ सोचेंगे, है ना। दिक्कत होगी, आप पढ़ेंगे तब आपको मुश्किल आएगी तो आप उसको सॉल्व करेंगे। आप जिंदगी गुजारने की, अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, तब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आएंगे और आप कुछ ना कुछ इजाद करेंगे। इसलिए कहते हैं कि सोचना जरूरी है ना। अल्लाह ने हमें क्या बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है। देखिए जानवरों में और इंसानों में यही एक फर्क है कि जानवर सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो इंसान इतना आगे जो बढ़ चुका है, इतनी तरक्की इंसानों ने की है, तो ये सिर्फ सोच पर की है। देखिए एआई, आज बोल रहे हैं ना हम, एआई का जमाना है, तो ये एआई को इजाद करने वाला भी तो इंसान ही है ना। वो क्या खुद ब खुद नहीं इजाद हुआ, उसको इजाद करने का दिमाग इंसान ही का है। तो इसीलिए तो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है। अल्लाह ने सबसे बड़ी नियामत है ना, तो सोचने की जो कुवत है इंसान की, वो अल्लाह का सबसे बेहतरीन तोहफा है इंसानों के लिए, कि वो अच्छा बुरा, है ना, सही गलत ये जो समझ रखता है ना। तो ये अशरफुल मखलूकात सिर्फ इंसान ही है ना, जो इतना सोच सकते हैं। और ये सोच ही है जो इतनी इजाद है, जो हम कह रहे हैं ना, ये बिजली की इजाद, ये सब भी तो इंसान की सोच ही है। किसी ने तो सोचा कि मैं इसका कुछ हल निकालूं, ये जो अंधेरा है इसको मैं दूर करूं, किसी ने सोचा, फिर बल्ब का इन्वेंट हुआ। फिर किसी ने सोचा कि इतनी दूरी है तो मैं ये दूरी को कम करूं, तो मैं इसके लिए एनिमल के जगह, है ना, जानवरों के जरिए मैं कोई ऐसे पहिया लगाऊं, तो साइकिल की इजाद हो गई, फिर गाड़ियों की इजाद हो गई, है ना। साइकिल के बाद सोचा होगा अरे साइकिल पे तो बहुत स्पीड कम है, थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ, फिर टू व्हीलर निकला होगा। फिर धूप, है ना, फिर टू व्हीलर पर तो बहुत धूप लगती है तो इससे बचना चाहिए, फिर फोर व्हीलर निकली, है ना। ऐसा सोच, ये सोच है, क्या है ये सब तरक्की, ये सिर्फ हमारी सोच है कि हमने हर मुश्किल का हल निकाला, है ना। जैसे धूप, हमारे पास टू व्हीलर है, तो धूप लग रही है, बारिश लग रही है, तो इंसान ने सोचा नहीं यार ऊपर कुछ तो छत चाहिए, फिर फोर व्हीलर, है ना, फोर व्हीलर का इजाद हुआ होगा। फिर अब फोर व्हीलर का हो गया तो इससे भी ज्यादा स्पीड भी चाहिए, तो फिर हवाई जहाज वगैरह की इजाद हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब सोच है, इंसान की सोच। तो इसीलिए इंसान ने सोचते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि अल्लाह ने हमें ये कुव्वत दी है, ये अल्लाह की जो नियामत है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। फिर देखिए आखिरी का मिसरा बहुत अच्छा है। या रब तेरी बख्शिश के यूरोप में ये चर्चे है, हमको भी अता कर कुछ, हम भी तेरे बंदे हैं। यानी ये क्या अता करने की बात हो रही है, सोच, है ना। इतने सारे जो इजादात हमने देखे, कि लाइट है, बिजली है ना, दूरी मिटाई है, कुछ की हो या कुछ भी हो, छत पर 1 मिनट में हम जाते हैं, है ना, ये सब जो लिफ्ट का यूज करते हैं, हर चीज आज के जमाने में हर चीज ये जो सब है, तो हमारी सोच की देन है ना, सोच की देन है। तो हाँ, जो शायर है अकबर इलाहाबादी, ये क्या कह रहे हैं, अल्लाह से यही मांग रहे हैं, दिमाग मांग रहे हैं, सोचने की सलाहियत मांग रहे हैं कि यार अब तेरे बख्शिश के ये जो चर्चे है, ये सब है ना, यूरोप में चर्चे है कि इतनी, है ना, बिजली की वजह से इतनी तरक्की हो गई, तो हमें भी ऐसी जहानत अता कर, हमें भी ऐसी सोच अता कर कि हम भी कुछ न कुछ इजाद करने वाले बने, है ना। बहुत अच्छी पोएम थी, बहुत अच्छी नज्म थी, इसमें बताया गया है तरक्की, बिजली के जो करिश्मे हैं उसके जरिए से यहाँ पर बताया गया है कि हम किस तरीके से, ये जो बिजली ने तरक्की की है ये इंसान की ही इजाद है, इंसान की सोच का ही नतीजा है ना। इंसान ने जब सोचा तभी तो इन्वेंट किया, है ना, तभी तो इन्वेंशन हो गया, इंसान की सोच का ही नतीजा है। तो हम
भी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम भी कुछ ना कुछ हमारी जहानत से फायदा उठाए, अच्छे बुरे की तमीज करे और नए नए इजाजत। ये बच्चों के मोटिवेशन के लिए बहुत अच्छी पोएम है। हाँ, चलिए फिर देखें। इसके बाद हम इसमें देखेंगे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो इंशाल्लाह देखेंगे, और जो हार्ड वर्ड है। और फिर भी अगर पोएम में आपको कहाँ दिक्कत आती होंगी आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बी रब्बिका इज्जति रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।